166 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। पेज 166 क्वेश्चन नंबर 9 रूलिंग सबने किया ही होगा। मैं एडजस्टमेंट पढ़ रही हूँ क्योंकि बैलेंस शीट में एज सच कोई डिफिकल्ट एंट्रीज नहीं होती। They decided to admit Kamal on 1st April 2018 on the following terms. Kamal shall have 1/4 share in future profit. They agreed to admit Kamal as a partner on 1st April on the following terms. She shall bring 50,000 as her capital and 40,000 as her share of goodwill. I mark this as her share of goodwill. Land and building be valued at 60,000 and furniture to be depreciated by 10%. सबको आता है. Provision for doubtful debts is to be maintained at 5% on debtors. Stock is to be valued at 1,10,000. Last paragraph. The capital accounts of all partners be adjusted in their new profit and loss ratio and excess amount be transferred to their loan account. Mark this sentence, excess amount. Mark excess amount transferred to their loan account. Prepare P&L adjustment account, capital account and new balance sheet. P&L adjustment यानी ही revaluation हमने last period में देखा है. But जब हमें बोला गया है P&L adjustment तो हम P&L adjustment account open करेंगे, right? Now start करते हैं posting. सबसे पहले capital balances transfer कर देते हैं. Old partners capital account में on the credit side balance brought down 1 lakh. अमित, बबन 1 लाख. दो ओल्ड पार्टनर्स थे, न्यू पार्टनर्स में कुछ नहीं आएगा. देन ट्रांसफर कैश बैलेंस टू कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000. Then check whether undistributed profit or undistributed losses are given in question or not. कैसे जानेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस? आपको मिलेंगे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L इन अकाउंट के नाम से. अगर मैं क्वेश्चन बैलेंस शीट चेक करती हूँ तो कहीं भी आपको रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L दिया हुआ नहीं है, तो ये स्टेप हमको लेने की जरूरत नहीं है. देन अब हम स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसके लिए पॉइंट 1, 2 एंड 3 ये न्यू पार्टनर से रिलेटेड है, ये हम लास्ट में करेंगे. दिया हुआ है 4th पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000. एट द टाइम ऑफ एडमिशन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग building is valued at 60,000. Compare the old value of land and building which is given in the balance sheet. In balance sheet, value of land and building is given at 50,000, but it is valued at 60,000 at the time of admission. That means in building, value is increased by 10,000. Land and building value increase हो रही है. That means it is our profit. वो profit, वो income हम show करेंगे P&L adjustment account के credit में by land and building account 10,000. Revised figure of land and building in balance sheet. Land and building 50,000. Increase by 10,000. Revised figure of building in outer column 60,000. Then furniture to be depreciated at 10%. Value of furniture is reduced by 10%. तो चेक करते हैं ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर गिवन इन बैलेंस शीट 4,000 पे 4,000 के फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन है. डेट मीन्स लॉस है. लॉसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 400. वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन द एसेट साइड 4,000 less depreciation 400. outer column 3,600. ये सबको आता है. Then provision for bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts means RDD.
एक्सपेक्टेड लॉस है इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। एडमिशन के बाद डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट होने वाली है 5%, यानी लॉस होने वाला है 5%। ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, दैट मीन्स ये न्यू आरडीडी अब हमको क्रिएट करनी है, यानी हमारे लिए लॉस है। तो वो लॉस सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टू आरडीडी अकाउंट। डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट करनी है, 16,000 पे हम क्रिएट करेंगे 5%, दैट इज 800 P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में। डेटर्स इनर कॉलम 16,000 लेस न्यू आरडीडी 800, that means revised figure of debtors will be 15,200. Then stock is to be valued at 1,10,000. चेक करते हैं ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक गिवन इन बैलेंस शीट एट 1 लाख का स्टॉक 1,10,000 पे आ चुका है, दैट मीन्स 10,000 से स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हुआ, असेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स इट इज योर इनकम। स्टॉक अकाउंट 10,000, stock 1 lakh old value increase by 10,000, new value of stock is 1,10,000 और कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं है। तो चेक करते हैं बैलेंस शीट। नॉन रिवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज को हमें एज इट इज बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। तो चेक करते हैं असेट्स लायबिलिटीज में सबसे पहले दिए क्रेडिटर्स, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, एज इट इज पोस्ट करेंगे क्रेडिटर्स 1,40,000। कैपिटल बैलेंसेस हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। असेट्स में कैश, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड हो चुका है। प्लांट पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, हम पोस्ट कर देते हैं प्लांट 60,000। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स सब पे रिवैल्यूएशन हो चुका है। नाउ क्लोज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एंड फाइंड आउट द बैलेंस, एंड दैट बैलेंस इज आपका या तो रहेगा प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंगस्ट पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 2:3 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। Credit is 20,000, debit is 1,200. That means balance on revaluation is 18,800. That amount divided amongst old partners 2/5 and 3/5 as the ratio is given as 2:3 respectively. That means first partner share is 2 and second partner share is 3. तो कैलकुलेट करते हैं 18,800 को 2/5 एंड 3/5 कैलकुलेट करेंगे सभी। is 7,520 and 11,280। ये शेयर रहेगा फर्स्ट पार्टनर का, सेकंड शेयर रहेगा सेकंड पार्टनर का। तो हम क्लोज करते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, जो टोटल ज्यादा है उसको हम दोनों तरफ लिख देंगे। फर्स्ट शेयर के सामने फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज अमित्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड पार्टनर शेयर, सेकंड पार्टनर्स बबन्स कैपिटल अकाउंट। उनके क्रेडिट में 7,520 and 11,280 आफ्टर क्लोजिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट।
न्यू फॉर्म में आएगा न्यू पार्टनर। सबसे पहले उस न्यू पार्टनर से हम लेंगे दो टाइप का अमाउंट। सबसे पहले लिया जाता है कैपिटल एंड उसके बाद लिया जाता है गुडविल। पहले आप करेंगे कैपिटल एंड गुडविल वर्किंग नोट के नीचे, फिर आपको बोर्ड से चेक करना है। तो पहले कैपिटल वर्किंग नोट में होना चाहिए, गुडविल की एंट्रीज वर्किंग नोट में होनी चाहिए। करेंगे सभी, पहले कैपिटल की एंट्री एंड देन गुडविल की एंट्री। कैपिटल न्यू पार्टनर फॉर्म में जब आएगा तो कंपल्सरीली उससे कैपिटल का अमाउंट लिया जाएगा। एंड न्यू पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 50,000, कैश में दिया होगा क्योंकि हमने कैश अकाउंट मेंटेन किया है, तो एंट्री पास होगी फॉर द फर्म कैश इज कमिंग इन एंड न्यू पार्टनर कमल इज गिवर। तो एंट्री हमने पास की कैश टू कमल्स कैपिटल। लाया हुआ कैपिटल सबको मालूम है कि हम किसी को भी ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये कमल का अमाउंट होता है, तो ये कमल को ही वापस किया जाएगा। कब वापस करेंगे? जब कमल रिटायर होगा या कमल का डेथ होगा या पूरी फर्म बंद होती है, तो ये अमाउंट कमल को वापस किया जाएगा। इसलिए लिया हुआ कैपिटल किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास नहीं होती। कैपिटल की हम सिंगल एंट्री पास करते हैं। आपने लेजर में भी उसको पोस्ट किया होगा। कैश के डेबिट में टू कमल्स कैपिटल, जिनका हो चुका है वो गुडविल की एंट्रीज पे बढ़ सकते हैं। कमल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। नाउ पास एंट्रीज फॉर गुडविल। कैसे चेक करना है कि गुडविल अमाउंट इमीडिएट रिसीव हुआ या फ्यूचर में मिलेगा, मैंने हिंट दी हुई है। तो आप पहले गुडविल की एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे सभी एंड देन चेक जो आपने रिकॉर्ड किया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यहीं पे हम अपना जजमेंट ले सकते हैं कि हमें गुडविल की एंट्रीज आ रही है कि नहीं आ रही है। गुडविल अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट न्यू पार्टनर फर्म में इमीडिएट भी दे सकता है या फ्यूचर में भी दे सकता है। मैंने आपको बताया है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि उसने आज पैसा दिया या फ्यूचर में दिया। मैंने एक सिंपल हिंट दी है कि अगर क्वेश्चन में रेज वर्ड है तो उसने इमीडिएट गुडविल का अमाउंट फर्म में नहीं लाया। तो इस क्वेश्चन में रेज्ड कहीं भी नहीं दिया है, दैट मीन्स उसने ये अमाउंट फर्म को इमीडिएट दिया और ऐसा दिया हुआ भी है। पॉइंट नंबर
आप पढ़ेंगे 3, she shall bring 50,000 as her capital and 40,000 as her share of goodwill. गुडविल में वो अपना शेयर लाएगी, तो उसका शेयर कितना है 40,000. ये उसने इमीडिएट दिया क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी रेज ये वर्ड लिखा हुआ नहीं है. तो गुडविल अमाउंट फर्म को मिलेगा. तो फर्स्ट एंट्री हम गुडविल अमाउंट रिसीव्ड की पास करते हैं. दैट अमाउंट, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इमेज अमाउंट, दैट रेपुटेशन अमाउंट हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फर्म ये अपने पास नहीं रखती ना, फर्म इसको कमल को वापस करने वाली है. कमल ने ये एक्स्ट्रा अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाई है. ओल्ड पार्टनर्स ने जो इस फर्म में मेहनत की है, वो मेहनत का पैसा उसको देना पड़ता है. तो ये अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर्स. तो सबसे पहले गुडविल अमाउंट रिसीव्ड एंड दैट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पार्टनर्स. तो मुझे सेकेंड एंट्री पास करनी पड़ती है, अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स. एंड देन वो अगर विड्रॉ करते हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे पेड की एंट्री. ये सीक्वेंस होता है. बट इस क्वेश्चन में विड्रॉ हुआ ऐसा मेंशन भी नहीं है, यानी ओल्ड पार्टनर्स ने अभी तक ये शेयर अपना विड्रॉ नहीं किया. कब जब करेंगे तब विड्रॉ की एंट्री पास होगी. आज हमें गुडविल का अमाउंट मिला हुआ गुडविल का अमाउंट हमने सिर्फ अलग अलग करके रखा है कि इसमें अमित का शेयर कितना है और बबन का शेयर कितना है. जब वो विड्रॉ करेंगे तो अपने शेयर का अमाउंट विड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले गुडविल अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, दैट मींस फॉर फर्म कैश इज कमिंग इन, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया. गुडविल के अगेंस्ट मिला तो एंट्री पास की कैश टू गुडविल. ये करेक्ट होनी चाहिए एंट्रीज. अभी मिला हुआ अमाउंट पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स, तो मिला हुआ अमाउंट हमने अमित एंड बबन को पेएबल किया, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया. तो मुझे रेशियो लगेगा. ये रेशियो होता है हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो. वो जितना सैक्रिफाइस करने वाले हैं, उन्होंने जितना सैक्रिफाइस किया उस रेशियो में ये गुडविल अमाउंट डिवाइड करनी पड़ती है. बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया गया. न्यू रेशियो अगर नहीं है तो ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो अज्यूम करते हैं. तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, तो मैंने उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया. तो एंट्री पास की गुडविल टू अमित्स कैपिटल टू बबन्स कैपिटल. 40,000 को 2:3 में डिवाइड किया. 16,000 एंड 24,000 ये अमाउंट को, ये एंट्रीज को आपने लेजर में भी पोस्ट किया होगा. फर्स्ट एंट्री कैश के डेबिट में एंड सेकेंड एंट्री पार्टनर्स के क्रेडिट में. पेड की एंट्री नहीं आएगी क्योंकि क्वेश्चन में विड्रॉन दिया हुआ नहीं है. अब पढ़ते हैं पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ. कैपिटल अकाउंट्स ऑफ. देखो हमने जो जो कैपिटल एडजस्टमेंट 2 क्वेश्चंस में किया है वो सब पहले रिवाइज करो, रिकलेक्ट करो और रिकलेक्ट सोचो और रुक जाओ. वहां क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स. ऑल का मीनिंग होता है ऑल यानी सारे, यानी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर. बी एडजस्टेड, उनको आपको एडजस्ट करना है. किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. न्यू रेशियो में एडजस्ट करो एंड एक्सेस डेफिसिट जो भी आता है अब मालूम है सबको. रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल का डिफरेंस इज एक्सेस और डेफिसिट. ये अमाउंट एडजस्ट करो थ्रू क्या दिया हुआ है, लोन अकाउंट. ये कुछ तो भी आज ये एडजस्टमेंट मुझे लोन के थ्रू करनी है, तो उस सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे. एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. वो लोन अकाउंट अभी छोड़ दो, भूल जाओ. हम क्या करते हैं, इस एडजस्टमेंट को हम कौन सी एडजस्टमेंट कहेंगे. क्या एडजस्ट करना है, कैपिटल्स. तो ये एडजस्टमेंट को हम कौन सी एडजस्टमेंट कहेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट. तो लिखेंगे सभी थर्ड वर्किंग नोट कैपिटल एडजस्टमेंट. इस एडजस्टमेंट को आपको क्या करना है कि कैपिटल्स को एडजस्ट करना है और उन्होंने दिया ये एडजस्टमेंट किस रेशियो में होना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 3:2:1, 2:1:1 या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच विल बी इक्वल, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं.
तो मुझे सबसे पहले इस एडजस्टमेंट के लिए जरूरी होता है न्यू रेशो। न्यू रेशो दिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्या करना है, आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार वापस हम कैलकुलेट करते हैं, लिखेंगे इसके नीचे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसी ना किसी का न्यू का ही हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम किसका हेल्प लेंगे, न्यू पार्टनर के शेयर का, क्योंकि न्यू पार्टनर किस टर्म पे एडमिट हो रहा है उसका न्यू शेयर हमको मालूम है। उस न्यू शेयर का हेल्प लेते हुए हमें हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा न्यू पार्टनर इज कमल, तो कमल्स शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। किस कंडीशन पे कमल को फर्म में एडमिट किया गया, ये शेयर आपको क्वेश्चन में दिया ही जाता है और आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1, कमल शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। किस कंडीशन पे कमल को एडमिट किया गया कि अगर 4 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपी कमल को दिया जाए। तो कमल्स न्यू शेयर इज 1/4। 4 रुपीज का अगर प्रॉफिट होता है तो 1 रुपी कमल को, तो रिमेनिंग कितना, 3 रुपीज। तो सेकेंड स्टेप हम लिखेंगे रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 3/4। फिर ये रिमेनिंग किस में डिवाइड होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स को। 3 रुपए में से कुछ शेयर अमित का रहेगा, कुछ शेयर बबन का रहेगा। कितना न्यू रेशो है सबका, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं अब 1 तो मुझे पता है, बट ये 3 में से मुझे अमित और बबन का भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, इसीलिए रेशो कैलकुलेट किया जाएगा। न्यू रेशो इज इक्वल टू, पहले ओल्ड पार्टनर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर न्यू पार्टनर के लिए। ओल्ड को कैसा होगा, ये रिमेनिंग में से मिलेगा, इसलिए रिमेनिंग शेयर, और उनका कुछ ओल्ड रेशो भी था ना, इसलिए इनटू ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर रहेगा ओल्ड पार्टनर्स का, रिमेनिंग इनटू ओल्ड। तो फर्स्ट पार्टनर इज अमित, अमित्स रिमेनिंग, उसको रिमेनिंग में से भी मिलने वाला है, और उसका ओल्ड रेशो इज 2/5। 5 है ना, हाँ, इसीलिए 3 into 2, 4 into 5, that is 6/20। बबन्स शेयर, बबन इज अगेन ओल्ड पार्टनर है, तो उसको रिमेनिंग में से भी मिलेगा, और उसका कुछ ओल्ड रेशियो भी है, 3/5, that is 9/20। एंड न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मुझे कमल के लिए भी कैलकुलेट करना है, पर कमल को रिमेनिंग में से नहीं मिल सकता, उसका शेयर मुझे पता है, रिमेनिंग से ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो कमल का कितना शेयर है, 1/4, बट 20, तो यहाँ पर भी कितना चाहिए, 20। तो 4 को 20 करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 into 5, एंड न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा 1 into 5, तो ये रेशियो रहेगा 5/20। अब सबके डिनोमिनेटर इक्वल आ चुके हैं, तो न्यूमरेटर का मैं रेशियो लेती हूँ, तो वो है 6:9:5। क्या मैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या, और सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या मैं इसको और कोई सिंगल टेबल में इसको डिवाइड कर सकती हूँ क्या, नो, दैट मीन्स योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 6:9:5। सिक्स इज टू 9:5। इस रेशियो में मुझे इन तीनों के बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स दिखने वाले हैं वो मुझे 6:9:5 चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल बैलेंसेस है वो मुझे चाहिए इस रेशियो में, बट ये बैलेंसेस कभी भी कोई रेशियो में नहीं होते। इट जस्ट बैलेंस, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। बट उन्होंने कंडीशन दी है कि ये जो क्रेडिट माइनस डेबिट आप करोगे वो किस रेशियो में होने चाहिए, 6:9:5। ये आपको करना ही है क्योंकि दिया हुआ है।
तो इस रेशो में मुझे कितना कैपिटल बैलेंस चाहिए वो सबसे पहले कैलकुलेट करो, फिर देखो है कितना, फिर दोनों पर डिफरेंस से एडजस्टमेंट करके मुझे उनको 6:9:5 में लाना पड़ता है। तो लिखेंगे सभी अमित, बबन एंड कमल, इनके कैपिटल्स बैलेंसेस हमें चाहिए 6:9:5। इस रेशो में कितने चाहिए कैलकुलेट करो। तो सबसे पहला मैं कैपिटल कैलकुलेट करूंगी, रिक्वायर्ड, हमें इस रेशो में कितना कैपिटल चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड कैपिटल। कितना कैपिटल चाहिए कैलकुलेट करने के लिए अमित, बबन, कमल किसी भी एक पार्टनर का आप बेस ले सकते हो। मैंने कहा हमेशा हम किस अकाउंट का बेस लेंगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल का बेस लेंगे, क्योंकि वहां देखेंगे तो एंट्रीज बहुत कम होती है, इसलिए कैलकुलेशंस भी हमारे लिए इजी होते हैं। तो हम लेते हैं न्यू पार्टनर का बेस, कैपिटल का बेस, दैट इज कमल का बेस। तो मैंने देखा कितना दिया हुआ है 50,000, तो मैं लिखती हूँ कमल के नीचे 50,000। इसका क्या मीनिंग है कि कमल 5 शेयर के लिए 50,000 कंट्रीब्यूट करता है। कमल अपने 5 शेयर के लिए, उसका कैपिटल फर्म में अगर 50,000 दिखता है तो बबन का 9 के लिए कितना दिखना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 50,000 इंटू 9 अपॉन 5 दैट इज 90,000, बराबर। कमल का ही बेस लेते हुए हम अमित का कैलकुलेट करेंगे। कमल 5 के लिए 50,000 कंट्रीब्यूट करता है, तो अमित 6 के लिए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 50,000 इंटू 6 अपॉन 5 दैट इज 60,000, दैट इज रिक्वायर्ड। ये मैंने कैलकुलेट किया और मैंने देखा 60:90:50, इसका रेशियो क्या है 6:9:5, तो ये मुझे उसके अकाउंट में बैलेंस चाहिए, बट ये है क्या, कभी भी नहीं रहेंगे। तो कितना है वो कैलकुलेट करो। तो सेकंड स्टेप इज एक्चुअल कैपिटल बैलेंस। एक्चुअल कैपिटल बैलेंस, एक्चुअल यानी उनके अकाउंट में है कितना, फाइंड आउट करो। सबसे पहला पार्टनर है अमित, तो अमित के कैपिटल में कितना बैलेंस है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमित का क्रेडिट माइनस अमित का डेबिट। अमित का क्रेडिट सबसे पहले लेते हैं, $1,23,520 minus debit 0, that means balance is 123,520. Actual capital balance is 123,520. Now close. बबन्स क्लोज यानी फाइंड आउट करते हैं बबन के कैपिटल का एक्चुअल कैपिटल बैलेंस। उसके अकाउंट में मुझे चाहिए 90, पर है कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बबन का क्रेडिट माइनस बबन का डेबिट, कैलकुलेट करते हैं। $135,280 minus 0, that means balance is 135,280। कमल का एक्चुअल कैपिटल बैलेंस, कमल का क्रेडिट माइनस कमल का डेबिट, 50,000 माइनस 0, 50,000। इसमें आपको कभी भी एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी। न्यू पार्टनर में एडजस्टमेंट हमें कहाँ करनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। अब देखो पोजीशन कैसी है, रिक्वायर्ड इज 60, मुझे उसके अकाउंट में कैपिटल चाहिए 60, पर है कितना 123,520, चाहिए 60,000 पर है 123, तो इसको हम कहेंगे एक्सेस। हमारे पास उनका कैपिटल बहुत ज्यादा है, बट फर्म ने कंडीशन लगाई कि उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाने के लिए सिर्फ उनका कैपिटल फर्म में दिखना चाहिए 60, बट फर्म के पास अगर उनका 123 जमा है तो फर्म क्या करेगी, ये एक्सेस अमाउंट रिफंड करेगी।
कितना है एक्सेस अमाउंट, तो इन दोनों का डिफरेंस तो कैलकुलेट करते हैं 63,520 दिस इज एक्सेस अमाउंट। Bubbles required capital is 90 but actual capital is 135,280। फर्म के पास उसका कैपिटल चाहिए सिर्फ 90,000 बट फर्म के पास उसका है कितना 135 एक्सेस है, तो ये एक्सेस अमाउंट फर्म क्या करेगी, वापस कर देगी। कितना 45,280। तो ये एक्सेस अमाउंट जो है वो फर्म करेगी रिफंड। अब ध्यान से सुनो, ये तो हम रोज करते आ रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में यहाँ कंडीशन अलग है कि ये एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू क्या दिया है, लोन। यानी ये एंट्री जो मैं एक्सेस की पास करूंगी वो मुझे लोन के थ्रू रिकॉर्ड करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा वहां दिया हुआ था कि ये अमाउंट ट्रांसफर करो थ्रू बैंक अकाउंट, लास्ट पीरियड में किया ये कैपिटल एडजस्टमेंट करो थ्रू कैश अकाउंट। इस क्वेश्चन में देखा आपको कहा है कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट करो थ्रू लोन अकाउंट। कल हम जो करेंगे उसमें रहेगा कैपिटल एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करो थ्रू करंट अकाउंट। तो ये कैपिटल अमाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, एक्सेस और डेफिसिट हम कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, लोन के थ्रू भी कर सकते हैं और करंट अकाउंट के थ्रू भी इसको एंट्री में रिकॉर्ड किया जा सकता है। किसके थ्रू पूछा है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि ये एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, यानी ये एक्सेस की एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है थ्रू लोन अकाउंट। मैं पहले याद रखने का तरीका बता रही हूँ, कैसे याद रखना। फर्म के पास ये एक्सेस है ना, यानी फर्म ये अमाउंट वापस करेगी ना, तो मैंने पहले ये एंट्री को कैश में सोच लिया। अगर मैं इस अमाउंट को वापस करती हूँ अमित को मैंने ये सोच रही हूँ, अमित को अगर मैं अमाउंट रिफंड करती हूँ, वापस करती हूँ, तो क्या एंट्री पास होगी। अमित को पैसा दिया, दैट मीन्स फॉर फर्म, आप नहीं लिखेंगे फॉर फर्म कैश इज गोइंग आउट, आप लिखेंगे नहीं, ये कैश हम रिफंड करेंगे। बट हु इज द रिसीवर ऑफ कैश, अमित इज रिसीवर, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, अमित्स कैपिटल टू कैश। बट मुझे ये एंट्री थ्रू कैश अकाउंट पूछी है, मुझे ये एंट्री थ्रू बैंक अकाउंट पूछी है, कि मुझे ये एंट्री लोन अकाउंट थ्रू पूछी है, लोन। तो इस कैश को मैं रिप्लेस करती हूँ अमित्स लोन। इसका मतलब है कि ये अमाउंट हमने आज रिफंड नहीं की, अमित को हमने कहा हम आपको कुछ दिनों के बाद ये एक्सेस अमाउंट वापस करेंगे। जब मैंने आज कैश नहीं दी तो मुझे उसको कैश अकाउंट की जगह पे किसी न किसी अकाउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमने फर्म ने सोचा कि ये अमाउंट हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लोन, दैट मीन्स अमाउंट पेएबल टू अमित इन फ्यूचर। ठीक, तो हमने एंट्री पास की अमित्स कैपिटल टू अमित्स लोन। आप कैसे करेंगे, अमित टू कैश पहले मैंने रिकॉर्ड किया है और इस कैश को कट करके रिप्लेस कर देना अमित्स लोन, ताकि डिसीजन लेने के लिए इजी रहता है। कभी भी कैश में सोचना सिंपल होता है। तो मैंने ये एंट्री को कैश में सोच लिया, फर्म के पास ये एक्सेस अमाउंट है, ये एक्सेस अमाउंट रिफंड करना है। तो अगर मैं रिफंड करती हूँ तो मेरी एंट्री पास होती है अमित्स कैपिटल टू कैश। बट इस कैश को उन्होंने कहा कैश के थ्रू मत रिकॉर्ड करो, लोन के थ्रू, तो कैश को कट करके मैंने लिखा अमित्स लोन अकाउंट। ठीक, ये बबन में भी एक्सेस है, पहले समझ लो फिर लिखो। बबन लोन में भी एक्सेस अमाउंट है, यानी फर्म के पास बबन का कैपिटल एक्सेस जमा है, तो फर्म क्या करेगी, बबन को ये एक्सेस अमाउंट रिफंड करेगी। अगर वो कैश में रिफंड करता है तो एंट्री पास होगी बबन्स कैपिटल टू कैश। बट उन्होंने ये एंट्री किसके थ्रू पूछी है, लोन के थ्रू, तो इस कैश को हमने रिप्लेस किया बबन्स लोन। करेंगे सभी एंट्री एक्सेस की।
एक्सेस को मैंने पहले कैश में सोचा और कैश को रिप्लेस कर दिया, वहां लोन दिया है तो लोन। अगर करंट अकाउंट होता तो मैं इसके आगे क्या लिखा रहता, अमित्स करंट अकाउंट। ठीक, एंट्री पोस्ट कर देते हैं। अमित्स कैपिटल के डेबिट में हम लिखेंगे टू अमित्स लोन अकाउंट। तो अमित्स कैपिटल के डेबिट में टू लोन अकाउंट 63,520। बबन्स कैपिटल के डेबिट में टू बबन्स लोन अकाउंट 45,280। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कौन सा नया अकाउंट जर्नल एंट्री में इन्वॉल्व हुआ जो मैंने अभी तक कहीं भी लेजर में मेरे पास नहीं था? अमित्स लोन एंड बबन्स लोन। तो ये एक एक बार ही क्रेडिट हुआ है। दैट मीन्स ये अकाउंट टैली है कि बैलेंस है? बैलेंस है। क्यों? क्योंकि और कहीं ना डेबिट ना हुआ है ना क्रेडिट हुआ है। यानी अमित्स लोन अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है, बबन्स लोन अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है। जब कोई भी अकाउंट बैलेंस दिखाता है तो उसको कहाँ लेकर के जाएंगे? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में मैं या तो लायबिलिटी में पोस्ट करूंगी, नहीं तो असेट में पोस्ट करूंगी। बट लोन क्रेडिट हुआ है, ये लोन भी क्रेडिट हुआ है एंड ऑल क्रेडिट बैलेंसेस आर पोस्टेड कहाँ? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी में लिखेंगे अमित्स लोन 63,520, बबन्स लोन 45,280। नाउ क्लोज। क्योंकि सेकेंड इफेक्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा ना कहीं। ये लोन अकाउंट एक ही बार अमित का क्रेडिट हुआ, बबन का एक ही बार क्रेडिट हुआ। दैट मीन्स ये लोन अकाउंट शोज बैलेंस, इसलिए मुझे उसको बैलेंस शीट में लेकर के जाना पड़ा। और बैलेंस शीट में कहाँ पोस्ट करूं? लायबिलिटी की असेट। तो क्रेडिट हुआ है तो लायबिलिटी, डेबिट होता तो असेट में पोस्ट किया होता। ठीक, दैट मीन्स अमाउंट पेएबल इन फ्यूचर टू अमित एंड पेएबल इन फ्यूचर टू बबन। नाउ क्लोज। ऑल कैपिटल बैलेंसेस, उतने ही बैलेंसेस आने चाहिए जितने रिक्वायर्ड है। कैपिटल बैलेंसेस लेकर के जाएंगे लायबिलिटी में। Close cash account, find out the balance. Relax. $448,800। ठीक, आज इसको रिवाइज करना है। लोन का कैपिटल एडजस्टमेंट थ्रू लोन अकाउंट। आज हमने देखा लोन अकाउंट बैलेंस दिखाया तो हमने इसको बैलेंस शीट में लेकर के गया। क्रेडिट बैलेंस थे लोन को तो हमने लायबिलिटी में ट्रांसफर किया। ठीक, कल हम देखेंगे करंट अकाउंट वाला और फिर हम लाइव सेशन में इसके ऊपर के डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।